Go. Yes, very good morning, boys and girls. Good morning, sir. Be loud. Very good morning, boys and girls. Good morning, sir. I welcome you to yet another session of 11th Standard Economics. 11वीं इकोनॉमिक्स में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है. My dear friends, we have started with our first chapter, that is population in India. In my last lecture, I have already completed the definition of the word population. What do you mean by population? The number of people living in a particular area at a particular time is called as population. If we see the number of people living in India, we get to know that India is the second largest populated country in the world. As per the 2011 census, the population of India is 121.02 crores. In India, population is counted every 10 years. The last population census is of 2021, which is delayed due to the pandemic of COVID-19. Are you okay and clear till the points I had taught last? Yes. Last वाले lecture में हमने ये भी देखा था that there is abundant inequality of division of land among the world. Majority of the land is with US, but the least population is with them. That is not case with India. We have only 2.5% of the world land, whereas we are home for more than 20% of the population of the world. हमारे पास जमीन कितनी है पूरी दुनिया की? सिर्फ 2.5%, लेकिन हमारे यहाँ लोग कितने हैं? 20%. In the last introductory lecture also we saw some statistics which are presented in the DNA news, where we also got to know the densely populated state is Uttar Pradesh. The highest populated state in India is Uttar Pradesh. The second largest populated state is Maharashtra. Taking our discussion ahead, during the bulletin also, and even मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि 2024 तक by 2024 India is expected to be number 1 in case of population. Population is the number of people living in a particular area during a particular period of time, and this number of people living in India is the biggest problem before the Indian economy. हमारी भारत की अर्थव्यवस्था के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पॉपुलेशन को. ये क्यों? क्योंकि भारत पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो फेस कर रहा है. What is population explosion? Where the growth of the population is less than the growth of the economy. हमारे यहाँ इनकम 10 रुपए से 20 रुपए बढ़ रही है, लेकिन लोग हमारे यहाँ 100 से सीधे 200 हो रहे हैं. तो हमारे यहाँ कमाई कम है और कमाई बांटकर खाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है. इसीलिए the life of people living in India is relatively of low standard as compared to that of US. क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम है. वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, इसीलिए पैसा ज्यादा है और पैसे लेने वाले लोग कम है. हमारे यहाँ लोग ज्यादा है लेकिन पैसा कम है. Are you getting my point? Let us take our discussion ahead. In today's discussion, we'll be first discussing about trends in population growth. Trends in population growth. Trends in population growth के बारे में बात करने से पहले let me tell you that the year of 1921 is called as the year of Great Divide. क्या बोलते हैं इसको? Year of Great Divide. Why do we call it as year of Great Divide? Have you ever read in school about this? 1921 year of Great Divide. CBSE. Yeah, due to the famine which happened. What was the disease? Okay, is correct. Now you all have been witness of the global pandemic which happened due to COVID in 2019. Yes, we started in 2019. Did we see a global pandemic happening throughout the world with the COVID coronavirus? Yes or no? आया ना? Yes or no अग्रवाल जी? घर बैठे थे, डलगोना कॉफी है ना, क्या क्या कर रहे थे, नया नया लड़कियां नए नए केक बना रही थी, लड़के अलग अलग गेम खेल रहे थे, बहुत से मजा कर रहे थे, 4 महीने तो फुल मस्ती किए. माय डियर फ्रेंड्स, सेम काइंड ऑफ पैंडेमिक happened way back in 1918.
1918 में ऐसी ही एक महामारी आई थी जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा। 1918 में ऐसी एक महामारी, ऐसा एक पैनेडेमिक आया जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा, जो ग्लोबली पूरे विश्व में फैला। ग्लोबली पूरे विश्व में फैला। 1918 के दौर में हमारे यहां पर किसका राज था? ब्रिटिशर्स का। इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? नीळे गुड मॉर्निंग. व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? नंतर वाच, इकडे लक्ष दे. भारत स्वतंत्र कधी झाला? 1940? 1949. Round of applause. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1949. मतलब 2 साल न्यूयॉर्क का राज चल रहा था पूरे देश पे. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन सूरज 1947. डेट नशिब. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947. नॉट इन 1949 माय डियर फ्रेंड्स. इतना जनरल नॉलेज से रखो. किसके ख्याल में खोए हो? पॉपुलेशन के. इधर ध्यान दो. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. दैट मीन्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक पीरियड ऑफ 1918 of influenza, India was under the British rule. India was under the British rule. If you go back in the encyclopedia and search on the Wikipedia or Google, you'll get to know that this particular disease of influenza had its roots somewhere down in France. But during that period, there were wars ongoing between different nations. And on one of the sides, there were troops from England also. And some of the England troops were infected with that particular influenza. They were infected with that influenza. After the war, the few of the troops returned to India. क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश रूल यहां भी था. सो इंग्लिश के कुछ ट्रूप्स, कुछ सोल्जर्स हमारे इंडिया में वापस आए. और जैसे वो इंडिया में आए, इंडिया में महामारी लेकर आए. इंडिया में महामारी लेकर आए. उस वक्त जब इंडिया ब्रिटिश रूल में था, डू यू रियली थिंक द ब्रिटिशर्स केयर्ड अबाउट इंडियंस? Did they really care about Indians? No, they did not care about Indians. They never care about Indians. And on sad story, we had lost around 7% of our population as per records. There were 1.8 crore deaths. There were 1.8 crore deaths due to influenza during the period of 1920-21. 1920 से 21 साल में जो इंग्लैंड के ट्रूप युद्ध कर कर, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज वर्ल्ड वॉर और समथिंग. सो द इंग्लैंड ट्रूप्स हैड कम टू इंडिया. और भारत में आने के बाद ये सैनिक जो है, ये सैनिकों ने वहां से वो बीमारी लेकर आए. वो बीमारी जब भारत के लोगों को दी गई, आज के डेट में ही कोविड-19 के सेकंड वेव में अपने लोगों की क्या हालत थी, बोलने की जरूरत है क्या? ऑक्सीजन, सब चीजें देखी है आपने. ऑक्सीजन मांगने पे नहीं मिल रहा था. तो उस वक्त तो हालत क्या रही होगी? वहां तो कोई पूछने वाला भी नहीं था. कम से कम यहाँ मोदी जी तो है ध्यान रखने वाले. उस वक्त तो अंग्रेज से उनको कुछ लेना देना था कि अपने लोगों से नहीं. सो दैट वाज द रीजन ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंजा एंड ड्यूरिंग द लास्ट पैंडेमिक. इफ यू सी बैक द हिस्ट्री, विल गेट टू नो कोविड जैसी महामारी, पैंडेमिक दुनिया में हर 100 साल में आती है. ये पहली बार नहीं है कि कोई महामारी आई है. इससे 100 साल पहले इन्फ्लुएंजा आया था. उससे 100 साल से पहले पहली और महामारी आई थी. हर 100 साल में एक बार कोई ना कोई पैंडेमिक, कोई ना कोई महामारी जो है 100 साल में आती है. देयर इज सम और द अदर पैंडेमिक which comes every 100 years, which comes every 100 years. So last 100 साल पहले, अभी कब आया था? 2019. इससे पहले 1919 इन्फ्लुएंजा. तब
1.8 crore people lost their lives in India. That was highest number of death due to influenza in the entire world. लोग बीमार हो रहे थे, लोगों को तरफ देखने वाला कोई नहीं था, लोगों की केयर करने वाला कोई नहीं था, लोगों को मेडिसिन देने वाला कोई नहीं था, कुछ नहीं, मर रहे हैं लोग, मरने दो. 1.8 करोड़ पॉपुलेशन. अगर आप देखो 1921 में 25 करोड़ था, है ना. 10 करोड़ कितना, 10% कितना होता है? 2.5 करोड़. 1.8 मतलब कितना हुआ? लगभग 7% ऑफ पॉपुलेशन डाइड इन अ सिंगल ईयर. जो छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है. 1.8 करोड़ पीपल मरना मतलब हर घर में एक मृत्यु के बराबर. इस तरह के हालात थे. और उस पैंडेमिक की महामारी की ये जो 7% पॉपुलेशन का डेथ, 1.8 करोड़ का पॉपुलेशन का डेथ हुआ, ये वजह बनी कि भारत के इतिहास में पहली बार इंडिया में देयर वाज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. देयर वाज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. कैन यू सी? -0.3, 0.03. yes or no? This was the first time in the history of the Indian population that India saw negative population growth. And it was 0.03, -0.03. Hence, this year is called as Year of Great Divide. Because this year divides the slow growing population with फास्ट गोइंग पॉपुलेशन. उसके बाद नीचे देखो, एनुअल ग्रोथ रेट अगर आप देखते चलो तो पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव में है, कहीं पर भी नेगेटिव में नहीं है. वो एक ही साल था जब नेगेटिव ग्रोथ थी, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने की जगह कम हुई, इसीलिए उसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है. 1921 के बाद कभी पॉपुलेशन कम नहीं हुआ, बढ़ता गया. 1921, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 2011, 2021, जब भी देखो there is increase in population growth, but there is no negative growth. Only in the year 1921 there was negative growth, and that was due to the pandemic of influenza. That was due to the pandemic of influenza. Wait, I'll show you some interesting pictures if you haven't seen. इसीलिए इसे कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. क्या कहते हैं हम इसीलिए इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? यस और नो? आया ना, समझ में आया इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक अकेला ऐसा साल है जहां पर नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हुआ है. (1918) फ्लू पैंडेमिक इन इंडिया दिख रहा है, कुछ इमेजेस है शायद इसमें. ये देखो अस्पताल, कैन यू सी? कैन यू सी द इमेज? इमेज दिख रहा है क्या सभी लोगों को? काफी कितने सारे बेड है देखो एक हॉस्पिटल में, एक हॉल में, बड़े बड़े वेयर हाउस में, बड़े बड़े जगहों पे सीधा सीधा जो है बेड लगा दिए गए. कुछ कोरोना जैसे ही दिख रहा है ना. लेकिन ये इंग्लैंड का हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ पर नहीं. ओके, दिस वाज ऑफ इंग्लैंड. यू कैन सी सो मेनी वार्ड्स एंड सो मेनी थिंग्स. ब्रिटिश के इमेजेस ज़्यादा है. ये देखो डेथ, ये वार्ड्स अलग अलग हॉस्पिटल है, अलग अलग जगहों पे. यहाँ पे दिख रहा है देखो 1918 दिल्ली वॉज इन द ग्रिप ऑफ अनदर किलर कॉन्टेमिनेशन दैट इज नथिंग बट इन्फ्लुएंजा. और इसको नाम लोगों ने बॉम्बे फीवर दे दिया. क्या दे दिया?
बॉम्बे फीवर, क्योंकि जब वो इंग्लैंड से ट्रूप आए आने के बाद पहले शुरुआत में वो कहाँ है? बॉम्बे में। हमारे हर चीज पहले मुंबई में आती है ना? फिर वहां से पूरे इंडिया में वो फैला, इसलिए इसको इन इंडिया द फ्लू वाज कॉल्ड एज बॉम्बे फीवर। ये देखो, ये न्यूज बुलेटिन है। इट इज अनब्लॉक प्रोग्रेस इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। ओके, कैन यू सी एवरीथिंग? एक्चुअली इट इज अ स्पेनिश फ्लू, लेकिन इसको नाम अलग अलग जगहों पे, यहाँ पे इंडिया में इसको बॉम्बे फ्लू इसलिए दिया गया क्योंकि कहाँ से शुरू हुआ? बॉम्बे से। कहाँ से शुरू हुआ? बॉम्बे से, राइट? Hence the year of 1921 is called as the year of Great Divide. इसीलिए 1921 को हम क्या कहते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा साल था जहां पर नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखी गई है। अभी ओके, राइट? नाउ इफ यू सी द ट्रेंड्स इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, यू विल बी एबल टू सी दैट देयर वाज नो ग्रोथ बिटवीन दिस 10-year पीरियड। 1911 में भारत का पॉपुलेशन कितना था? 25.2 करोड़। और 1921 में 10 साल बाद पॉपुलेशन घट गया। पॉपुलेशन घट गया, इट वाज 25.1 करोड़। यहां पर रिकॉर्ड में 1 बता रहा है, लेकिन अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड की माने तो 1.8 करोड़ डेथ ऑफिशियली अनाउंस किए गए। ऑफिशियल रिकॉर्ड कितने ऑफिशियल होते तुमको बताने की जरूरत है क्या? उस वक्त तो ब्रिटिशर्स का राज था, वो कहां सच बोलते हैं? आराम से नहीं बोले तो भी भारत में 2-3 करोड़ लोग तो आराम से कम हो गए। लगभग 10% ऑफ द पॉपुलेशन इजीली वाज वॉश्ड आउट ड्यू टू अ सिंगल डिसीज। 10% ऑफ द पॉपुलेशन, इज इट अ स्मॉल नंबर और वेरी लार्ज नंबर? 2 करोड़ डेथ किसे बोलते हैं? पूरे कोरोना में अपने 2-1 लाख डेथ हुए तो भी अपने पास हाहाकार हो गया। 2 करोड़ मतलब देखो 10 गुना ज्यादा मृत्यु। सोचो क्या हालत रहे होंगे। इसीलिए द ईयर ऑफ 1921 इज कॉल्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसीलिए इसे कहते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इज एवरीवन क्लियर? राइट? ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया's population is very large in size and it's growing rapidly. But after 1921, there was no negative population growth. There was only positive growth of population. शुरुआत में भी तो ठीक था, लेकिन जैसे आजादी मिली, आजादी के बाद तो बस लोगों को हर चीजों में आजादी मिल गई। नो च्युइंग गम इन क्लास, ठीक है? It is growing rapidly. Information regarding the size, structure and other characteristics of India's population is obtained through census survey. हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन, जनसंख्या, जनगणना ये सेंसस के द्वारा की जाती है। इन इंडिया पॉपुलेशन इज काउंटेड एवरी 10 years. पॉपुलेशन काउंट इज डन एवरी 10 years. हर 10 साल में जो है पॉपुलेशन की जनगणना होती है। पॉपुलेशन की जनगणना हर 10 साल में होती है। इंडिया's population is counted every 10 years. The last census we have of 2011. As per the 2011 census, what is the population? 121.02 crores. Right? अब इसका 138 करोड़ के लगभग एक्सपेक्टेड है। मतलब 17-18 करोड़ पॉपुलेशन और बढ़ गया। मतलब बड़ो बेस 1.5 से 2% के बीच में और ग्रोथ रेट 2021 के सेंसस के मुताबिक आएगा। है या ना? यस और नो? राइट? अब यहां पर देखिए ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन शुरुआत में 25, यहां पर तो नेगेटिव था, फिर 27, 31, 36, 43, 54। यहां देखो इस पीरियड में देखो 1960 के बाद देखो, यहां अगर देखें तो 5-5 करोड़ से पॉपुलेशन बढ़ रहा है इस पीरियड में, है ना? लेकिन यहां अचानक से 11 करोड़ लोग बढ़ गए 10 साल में, यानी हर साल 1 करोड़ लोग। दिख रहा है ना सबको? डायरेक्ट 43.9 से डायरेक्ट वी जंप टू 54.9, 54.8। भारत आजाद हो गया था, भारत में रहने वाले लोगों को अधिकार मिल गए थे। सो बट ऑब्वियस इसका इम्पैक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ पे देखा गया। फिर यहाँ से हर साल 12, फिर इसके बाद देखो कितना ग्रोथ है ये, 16, 11, 12, 16, 15, 18, मतलब 10-11 के ऊपर हर साल 1 या 2 करोड़ लोग पैदा होने लगे। तो इस हिसाब से देखें तो हमारी पॉपुलेशन बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ने लगी, और उसी का नतीजा है कि आज हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है।
2024 के आंकड़े देख लेना, हम चाइना के आगे रहेंगे. बाय द एंड ऑफ 2024 विल बी अहेड ऑफ चाइना. वी शुड बी प्राउड ऑफ इट कि हम किसी में तो आगे हैं, लोक संख्या में क्यों ना हो, राइट. यहां पर उसी के बारे में दिया गया है जिस बारे में मैंने आपको बोला है. मार्जिनल डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड 1911 between 1911 to 1921. This marginal decline in the population was due to famine and the pandemic or epidemic of influenza, which is also called as the Spanish flu. The marginal decline in the population from 25.2 crores to 25.1 crores. Thus, there was negative growth due to the spread of epidemics such as influenza, cholera, plague, malaria, etc. और उसी वक्त इस इन्फ्लुएंजा की बीमारी ने मल्टीपल बीमारियों को पैदा किया, जिसमें कॉलेरा था, प्लेग था, मलेरिया था. मलेरिया तो आज भी चलता है ना. तो ये सारी बीमारियां, मल्टीपल बीमारियां उस वक्त के वायरस की आज तक हम देख रहे हैं. मलेरिया आज भी होता है, आज भी कुछ पेशेंट्स को मलेरिया होता है ना. शुरुआत कब है? 100 साल पहले. तो किसी को लगता है कि कोविड का एग्जिस्टेंस जीरो हो जाएगा, पेशेंट जीरो हो जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो. अब हम कोविड के साथ जिंदगी भर जिएंगे, क्योंकि उसको केस जीरो करने नहीं आता. जहां हमें लगा केस जीरो है, आज कोविड के केसेस फिर से एक्टिव है. बीच में फिर से अचानक से केस बढ़ने लगे, अचानक से महाराष्ट्र में वार्निंग आने लगे. तुम्हें यकीन नहीं होता, फिर से देखेंगे हम डेटा स्टैट. देखो, एक्टिव कोविड केसेस 16 जुलाई का रिकॉर्ड है. कितने हैं? न्यू केसेस कितने हैं? 20,528. कितने हैं न्यू केसेस? कितने? 20,528. देखो, अब तक डेथ कितनी है? 5.26 लाख. 5.26 लाख में पैंडेमिक कितना बड़ा लग रहा है अपने को. तो सोचो, उस वक्त 2 करोड़ लोग मरे होंगे तो क्या हालत रही, क्या हाहाकार मचा होगा. 2 करोड़ लोग 5 लाख में पैंडेमिक में तौबा तौबा हो रहा है ना. 5-6 लाख में 2 करोड़ लोगों का मरना मतलब आम बात है क्या? एकदम तांडव था यमदूत का. एक्टिव केसेस देखो, दिख रहा है यहां पर 1,43,449. मतलब अभी भी 1.5 लाख पेशेंट इंडिया में घूम रहे हैं. मतलब 1.5 लाख पेशेंट की बॉडी में कहीं ना कहीं वो वायरस जिंदा है. जीरो हुआ है क्या? नहीं. सिर्फ फर्क कितना है, अभी एक रेगुलर बीमारी जैसे हो गया, क्योंकि इसके ऊपर वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ने करवा लिया है ना. अब इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा? जिसने वैक्सीनेशन भी लिया है. वैक्सीनेशन लेने के बाद भी जिसको मल्टीपल डिसीजेस का प्रॉब्लम है, अगर वो गलती से इसके कांटेक्ट में आएगा तो उसकी डेथ पक्की है, भले उसने वैक्सीनेशन क्यों ना लिया हो. तो सिर्फ वैक्सीनेशन ली है तो वैक्सीनेशन को लेकर आप ये मत सोचना कि मैं एकदम रिलैक्स हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ. इसलिए मैं कुछ दिन पहले बोल रहा था, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज शुरू करो. ट्राई टू इनकलकेट सम एक्सरसाइज हैबिट. ट्राई टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी पावर. वो कब होगी? जब आप फिजिकल वर्कआउट करोगे. इवन आई वॉज इन्फेक्टेड ड्यू टू कोविड, बट मुझे कुछ लगा ही नहीं. सिर्फ टेस्ट और हो गया, वो भी दवाइयों की वजह से जाता है. उसके अंदर कोविड में जो दवाई वगैरह दी जाती है उसके से, बट बाकी सिम्टम में कोई बॉडी एक नहीं, कुछ नहीं. एक ही वजह थी, क्योंकि साइकिलिंग से जो इम्यूनिटी पावर बना उसे कुछ मुझे इम्पैक्ट ही नहीं हुआ. सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट था, इसलिए वो दवाइयाँ लेनी पड़ी. वो दवाइयाँ लेने की वजह से 4 दिन क्वारंटाइन था मैं मैक्सिमम. दवाइयाँ लेने की वजह से वो टेस्ट और सब जाता है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होती है दवाई. बाकी उसके अलावा मेरे बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं था. मैं तो जिस दिन पॉजिटिव था उस दिन भी घूम रहा था. 3-4 दिन क्वारंटाइन में भी इधर उधर छत पे इधर उधर घर में घूम रहा था. कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कोविड जैसा. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इम्यूनिटी पावर काफी अच्छी थी कंसिस्टेंटली. पहले लॉकडाउन से ही मैं, और मैं सेकंड वेव जब आया, जब इन्फेक्टेड हो. फर्स्ट वेव आई वाज नॉट इन्फेक्टेड. बाय द टाइम आई केम इन सेकंड वेव, 1 साल हो चुका था, और मैं 1 साल से कंसिस्टेंटली रोजाना 35 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहा था, जो आज भी करता हूँ. इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होना जरूरी है. किसी को लगता है कोविड जीरो हो गया,
0.32 केसेस आज भी है। आज भी 1,43 केसेस, मतलब लगभग 1.5 लाख केसेस है। सो कोई कह सकता है क्या पैंडेमिक खत्म हो चुका है? खत्म नहीं हुआ, सिर्फ ये एक सर्दी बीमारी जैसी बीमारी हो गई। इसका एज ग्रुप के हिसाब से इम्पैक्ट होता रहेगा, इसका एज ग्रुप के हिसाब से इम्पैक्ट होता रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए वैक्सीनेशन कंप्लीट करना अनिवार्य और कंपलसरी है। शुरुआत में डेथ इसलिए हुए क्योंकि वैक्सीनेशन इसके अवेलेबल नहीं थे। क्या आप लोगों में से सभी लोगों ने दोनों डोज कंप्लीट कर लिए? किसने नहीं किए दोनों डोज कंप्लीट? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। हो गए तुम दोनों के दोनों डोज हो गए? हाथ ऊपर करो। फिर मैं भी बोला ना, किसके दोनों डोज पेंडिंग है? एक ही डोज हुआ, ऐसे कितने लोग हैं? क्यों नहीं ले रहे हो? कंप्लीट करो डोज। अपने यहाँ पर आप जैसे लोगों को, मेरे यहाँ पर, सॉरी अपने यहाँ पर क्लास में तुम जैसे लोगों को एजुकेटेड इलिटरेट बुलाता हूँ मैं। क्या? एजुकेटेड इलिटरेट। पढ़े लिखर होकर भी गवारों के जैसे बिहेव करते हो, पढ़े लिखर होकर भी गवारों के जैसे बिहेव करते हो। तुम्हें समझना चाहिए कि कोई चीज की गांभीर्य सीरियसनेस क्या है। बिकॉज दैट पर्टिकुलर वैक्सीनेशन इज प्रोवाइडिंग यू ए शील्ड, वी विल बी प्रोटेक्टेड from getting into contact with that particular virus, and even if you get that vaccine will provide you immunity power, जिसकी वजह से डेथ रेट 0 के बराबर। आज जो कोविड केसेस होने के बाद भी अब डेथ का उतना तांडव इसलिए नहीं है क्योंकि जो वैक्सीनेशन हम सब लोगों ने कंप्लीट की है उसकी वजह से बॉडी में इनबिल्ट इम्यूनिटी पावर डेवलप हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो इतने रिलैक्स्ड और चिल मत रहो। मलेरिया तब 100 साल पहले था, आज भी मलेरिया है। मतलब कोविड आज है कि कोरोना के इम्पैक्ट अगले 100 साल तक भी चलते रहेंगे। कभी भी इस बीमारी के 0 पेशेंट नहीं होंगे, कभी भी इस बीमारी के 0 पेशेंट नहीं होंगे। बीच में लग रहा था 0 हो जाएगा, अचानक से बबूला फूट गया, 1.5 लाख पेशेंट हो गए। क्योंकि भारत में लोगों की कमी नहीं है, शादियों की कमी नहीं है। शादी में एक को मिला कि वो पूरे सबको प्रसाद देके जाता सबको, है ना। और इंडिया में शादी बोल तो क्या मेला है, 500 1000 लोग कहीं से भी आ जाते हैं। गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कहीं से भी लोग आ जाते हैं। सो इसीलिए सभी स्टूडेंट से मेरा अर्ज है कि अगर आपका वैक्सीनेशन ठीक से कंप्लीट नहीं है, बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ एजुकेटेड स्टूडेंट, इट इज योर प्राइमरी फेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट बोथ योर वैक्सीनेशन। सो कंप्लीट बोथ योर वैक्सीनेशंस विद इन टाइम फ्रेम। जब आपको छुट्टी दी जा रही है क्लास को, उस दिन वैक्सीनेशन जाकर अपना अपना कंप्लीट करें। इट इज इंपॉर्टेंट। द पैंडेमिक इज नॉट गॉन, नॉर इट विल गो एनीवेयर, इट विल बी विथ अस। हमारे साथ आज कोविड घूम रहा है, सिर्फ फर्क कितना है, हमारे पास शील्ड है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, दैट इज नथिंग बट द वैक्सीनेशन। और सिर्फ वैक्सीनेशन के शील्ड से कुछ नहीं होगा। बहुत बार वैक्सीनेशन भी काम नहीं करती, लेकिन एक चीज काम करेगी, आपका इंटरनल इम्यूनिटी पावर। वो कैसे होगा? ओनली विथ योर फिजिकल फिटनेस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिस। Are we okay? Take my instructions very clearly. Now the year of great divide. Why is it called as year of great divide? Because India saw negative growth rate of population. This is the only year in the entire census history of India where growth rate of population was negative. The decadal growth of the population was negative during the period 1911 to 1921. After the 1921, there was continuous increase in the population. उसके बाद कभी कम नहीं हुआ, उसके बाद सिर्फ बढ़ता गया. Hence, the Census Commissioner of India has designated the year of 21 as the year of Great Divide. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? Year of Great Divide. Are we okay and clear? Next, positive growth rate ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1931 टू 41. फिर उसके बाद पॉजिटिव ग्रोथ आने लगी, धीरे धीरे जो है पॉपुलेशन बढ़ने लगा. इंडिया रिकॉर्डेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 1 to 1.3% ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड. जो मैंने टेबल बताया था उसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है. इंक्रीज इन पॉपुलेशन 1951 ऑनवर्ड्स. आज़ादी के बाद भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा अधिकार मिलने लगे. राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, बेसिक जो चीजें सर्वाइवल के लिए लगती है वो मिलने लगी. ब्रिटिश राज में ये सब चीजें नहीं मिलता था. खाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीजें नहीं मिलती. और आजादी के बाद ये फंडामेंटल राइट बन गए सिटीजन्स के.
सो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन की ग्रोथ को पंख फूट गया। इसलिए 1951 ऑनवर्ड्स वी सी ट्रेमेंडस ग्रोथ। जैसे मैंने ऊपर स्टैट्स बताया था, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़, लेकिन 1906 के बाद हर 10 साल में 10 11 15 ऐसे फिर बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि भारतीय लोगों को अधिकार मिलने लगे और उस अधिकार का फायदा ऐसा हुआ कि पॉपुलेशन में बढ़ोतरी होने लगी। बिकॉज एवरी पर्सन गिविंग बर्थ इन द फैमिली इज रिलीव्ड कि मैं मेरे बच्चों का ध्यान रखूं मत देखूं, संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार में उसको शिक्षा मिल जाएगी, उसको खाना मिल जाएगा, उसको सब मिल जाएगा। पहले ये अंग्रेज के जमाने में नहीं था। वी हैव राइट टू एजुकेशन, वी हैव राइट टू एजुकेशन। अंडर द न्यू राइट टू एजुकेशन एक्ट, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज राइट टू एजुकेशन और एवरी child in India has right to education from primary level to 12th as per the new education policy. न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले 4 ईयर्स से 14 ईयर्स का एजुकेशन, यानी पहली कक्षा से 10वीं कक्षा का एजुकेशन राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आता था, जहां पर फ्री एजुकेशन हर बच्चे को कंपलसरी प्रोवाइड करने का अधिकार मिला था। अब वो कहां से आ गया है? प्राइमरी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक का राइट टू एजुकेशन का अधिकार मिला है। मान लो कोई परिवार है, बाजू का परिवार है, उन्होंने 2 बच्चे पैदा किए और वो अपने बच्चों का शिक्षा का कुछ नहीं कर सकते। वो बच्चे संविधान के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत फ्री एजुकेशन इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके ले सकते हैं। जिला परिषद के जो भी स्कूल होते हैं वहां पे फीस नहीं ली जाती, वहां पर फीस नहीं ली जाती, वहां पे एजुकेशन अब 12वीं तक का फ्री होगा। ये बात पता है सब लोग को? गवर्नमेंट स्कूल में फीस नहीं होती, वहां पर फ्री एजुकेशन दिया जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट? अभी ओके? Between 1951 to 71, population increased from 36 to 54.8 crores. This shows that after independence, there was tremendous rise in the population. Population explosion. 1971 के बाद तो 15 करोड़ 16 करोड़ ऐसा पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी अचानक से पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा तेज हो गई। During this period, India experienced a population explosion because during these 3 decades, annual population growth rate was more than 2%. Was more than 2%. Slowdown in the population growth. वापस से 2001 के बाद लिटरेसी रेट इंडिया में धीरे धीरे बढ़ने लगा, और जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ता है वैसे वैसे पॉपुलेशन ग्रोथ अपने आप होने लगता है। पॉपुलेशन ग्रोथ अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि जैसे लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वो मैच्योर्ड होते हैं समझने के लिए। इलिटरेट पीपल आर दोज विच फील कि लड़का होना जरूरी है, लेकिन लिटरेट लोग रहेंगे तो वो समझेंगे कि लड़का या लड़की है, डजंट मेक अ डिफरेंस। देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन बॉय एंड अ गर्ल। जैसे मेरे अंकलों के लिए जरूरी था कि लड़का होना जरूरी है, इसलिए एक अंकल को 4 लड़कियां, एक अंकल को 3 लड़कियां हैं। वहीं मेरी बड़ी बहन को 2 लड़कियां हैं, बट दे नेवर वांटेड अ थर्ड चाइल्ड हु इज अ बॉय। व्हाई? बिकॉज शी इज अ लेक्चरर एंड हर हस्बैंड इज ऑल्सो, मेरे जीजू जो है वो एक डॉक्टर है। लिटरेट होने को ऐसे दे अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉय और अ गर्ल। और वही अनपढ़ होते तो उनके लिए भी लड़का होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि कुलदीपक का परिवार में होना काफी जरूरी है, राइट? Then after 2001 to 11 census, we see that literacy rate increased, due to which again the population growth was stabilized. There is an incident slowdown in the growth rate of the population from 1.9% to 1.4%. This shows that the average annual growth rate is declining. फिर से जो है population growth अपने आप होने लगा। महंगाई हो गई, लोगों को समझ में आ रहा है खर्चा कितना है। अभी साची आरओ को स्कूल में रखा है, आरओ की प्ले ग्रुप की फीस 15,000 रुपए है सालाना, साची की 20,000 है। मान लो 7-8 बच्चे कर लिए तो फिर कितना ही खर्चा लगेगा? स्कूल का खर्चा ही है 2 लाख रुपए का फीस का। खर्च बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, इसलिए अपने आप एनुअल ग्रोथ समझदारी के साथ, लिटरेसी के साथ, बढ़ते हुए खर्चों के साथ अपने आप कम हो चुके, क्योंकि अब सरवाइव करवाना और बड़े परिवार को सरवाइव करवाना इज नॉट अ सिंपल टास्क, इट इज वेरी एक्सपेंसिव ड्यू टू द महंगाई इधर। अभी ओके विद द ट्रेंड्स इन द पॉपुलेशन? यस और नो? हाँ या ना? सभी लोग क्लियर हैं? इसके बाद का जो पॉइंट है दैट इज द थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है। कल हम इंटरेस्टिंग पार्ट थोड़ा सा कॉजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम थ्योरीज की तरफ बाद में आएंगे। विल कम टू थ्योरीज लेटर ऑन। ओके, थैंक यू सो मच।